need basically two kind of hardware things. One is magnet. First one is magnet. Second one is our RF source. Third is detector. Right. So for that reason, this is your magnet, and that is an electromagnet. By electricity, we make this a magnet. So these are the two coils you can see. Basically, this is one coil. This is another coil. Now for giving a magnetic field, we provide a DC field. To a coil, if we provide a AC field, is it okay? Or a little bit more explaining? No, it's okay, I believe, right? Okay. So if you give a AC field, alternating field to a electromagnet, so your magnetic field will be also alternating. That we don't want. That is why we provide a DC field, so that your N pole and S pole remain fixed, and the flux line from N pole to S pole in a similar way and uniform. So uniformity is a different thing. Homogeneity, uniformity is a different thing, because to be very honest, homogeneity is needed only for NMR. Homogeneity really doesn't matter for ESR. Anyway, so these two are your magnetic poles. So coils are inside, but actual magnetic pole is this two. So before, here your flux line is coming from N pole to S pole, right? To energize this coil, we have a separate power supply. This we call excite PS or excite power supply, which gives the required current to magnetize these two coils. And this excite PS is being controlled by our spectrometer as well as our workstation PC. So this can go up to 1.3, not 1.3, 1300. Means 1.3 Tesla. Now this is your microwave source, and as well as detector is also inside. And this is your cavity. So basically for NMR we call it as a probe, for ESR we call it cavity. Now the microwave we are generating, it will come from this side, and this tube you can see, this is the wavelet. Through this tube, your microwave power reflects and comes like this way, and goes inside cavity. Then your sample will be excited. When your sample gives you back the radiation, it will come back through the same way. Then here it will be bifurcated inside, and it will go to here. Then it will show you the spectra. Now another challenges come when we excite the electromagnet. Obviously electromagnet will generate some heat. To reduce that heat, we need chilled water to cool down this magnet coil. So that is why one chiller has been installed outside. So from chiller, cooled water is coming through the pipe, because you can see from the back side. The same cooled chilled water is also going inside the conduit to cool down your microwave generator also. So now chiller is on. Then to turn on the magnet, this is your excite PS. Now third is your spectrometer. And a spectrometer to be power देना होता है, right? That one is spectrometer. That small one. So spectrometer to be power आ रहा है. That is coming through this step down transformer. क्योंकि हमारा जो spectrometer है वो 100 volt पे चलता है. So once you turn on the SDT, you will see the voltage over here. Through SDT, power is going to spectrometer. Through this LCD, power is going to excite PS. आपका chiller already on है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है. ये जो मैग्नेट पावर सप्लाई है, ये यहाँ पे मैग्नेट का करंट का वैल्यू दिखाता है. ठीक है, और ये जो स्विच है ये ऑन पोजीशन पे ही रहता है, इसको कभी भी ऑफ नहीं करना है. ये ऑन पोजीशन पे ही रहेगा. जब हम स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर विल गिव इंस्ट्रक्शन टू टर्न ऑन द मैग्नेट ऑटोमेटिकली. देयर इज अ प्रोग्राम लाइक थिंग, सो इट विल ऑटोमेटिकली ऑन द मैग्नेट, राइट. तो ये सप्लाई कंप्लीट होने के बाद आपको स्पेक्ट्रोमीटर को ऑन करना है. दिस इज योर स्पेक्ट्रोमीटर स्विच. स्पेक्ट्रोमीटर ऑन होने के बाद आपको पीसी को ऑन करना है. तो जब ये पीसी ऑन होगा, पीसी ऑन होने के बाद ना पीसी खुद को कॉन्फ़िगर करता है और पीसी इनिशियलाइज करता है कम्युनिकेशन को. सो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पीसी. इसके पीछे कुछ एडीसी कन्वर्टर एंड डीएसी कन्वर्टर लगा हुआ है नीचे. ये स्पेक्ट्रोमीटर के साथ कनेक्टेड है, राइट. तो ये जब खुद को इनिशियलाइज करेगा
तब जाके आपको यहाँ से कुछ साउंड मिलेगा विच इज नॉर्मल। इसके अंदर कुछ मोटर्स होते हैं जो मोटर इनिशियलाइज होते हैं, घूमते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर को पता चलता है कि स्पेक्ट्रोमीटर इज ऑन, यहाँ पे पावर सप्लाई आ रहा है, चिलर इज ऑन, तब ये इसको इनिशियलाइज करता है। ये इनिशियलाइज होने के बाद आपका मैग्नेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा एक साउंड के साथ। देखिए एक साउंड हो रहा है, टक 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 टक। You can get a sound. See? तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है टू स्टार्ट द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे हमने जो क्रोनोलॉजी बताया, ये क्रोनोलॉजी कोई भी एक अगर मिस हो जाता है तो आपका ये मैग्नेट ऑन नहीं होगा, राइट? मतलब सपोज योर पीसी पहले से ऑन है, ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीटर आपने ऑन कर दिया, उसके बाद फिर आपको याद आया अरे नहीं मैंने तो इसका पावर को ऑन करना भूल गया, उसके बाद जाके आपने इसका पावर को ऑन किया, तो सॉफ्टवेयर ओपन होगा बट आपका मैग्नेट स्टार्ट नहीं होगा, राइट? आपको ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो जब मैग्नेट स्टार्ट होता है तब आप देखोगे यहाँ पे जो ये जो निडल है, दिस निडल विल गो टू क्लोज टू 20 एम्पियर। तो यहाँ पे 20 एम्पियर का मतलब ये है, नाउ 20 एम्पियर करंट इज बीइंग सप्लाइड टू योर मैग्नेट। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन अभी आ चुका है डिपेंडिंग अपॉन द करंट, राइट? सो बेसिकली दिस इज आवर बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम। जब मैग्नेट स्टार्ट होता है, इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होता है, तो पहले वो क्या करता है, इसको 350 मिली टेस्ला के आसपास लेके जाता है। So 350 मिली टेस्ला पे लेके जाने के लिए इसको 20 एम्पियर भेजना पड़ता है। So this is our by default program। ये फेनोमेनन अगर आपको दिख रहा है कि लाइक दिस इज और टर्न ऑन, दिस इज गोइंग क्लोज टू 20 एम्पियर, दैट मींस एवरीथिंग इज परफेक्ट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंटेशन साइड। नाउ वी विल गो टू सॉफ्टवेयर। नाउ हियर यू कैन सी 3 लॉगिन दिया हुआ है। वन इज एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड वन इज ESR, थर्ड वन इज ऑफलाइन। Administrator is for us. You will not go inside administrator. This ESR is for you. Offline is also for you. When ESR कब जाना है और offline कब जाना है? जब आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट देखना है, इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है, इंस्ट्रूमेंट को मैनिपुलेट करना है, then you will be going to ESR. बट ऐसे भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ, आपको कुछ डेटा चाहिए यहाँ से, तब आप ऑफलाइन भी जा सकते। सो देन सब कुछ ऑफ रहेगा, आपका पीसी ऑन रहेगा, यू कैन गो इनसाइड ऑफलाइन एंड यू कैन गेट योर अर्लियर डेटा। यस सर। नाउ पासवर्ड इज आल्सो ESR, स्मॉल बिट। You will find your software. This one. Yes. You open this. Now इसको अनलॉक करना है. It's okay. So you will find information for the instrumentation over here. So it will show you whether water flow is okay or not, your conduit is on or not, your magnet power is on or not. If anyone in these three is off, it will be red. So from here you can see the instrumentation status also. Now यहाँ पे क्या है, आपका मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका इंफॉर्मेशन दिखाता रहता है. Now if you can see by default it is in 336 millitesla. So what I told you earlier is by default program की वजह से for 20 ampere current it will go up to 336 millitesla. So it is showing you. Okay. Now यहाँ पे और एक मेन चीज़ है. Now we come to sample part. हमें सैंपल करने से पहले क्या करना चाहिए? सैंपल करने से हमारा सैंपल जो जाता है ये कैविटी के अंदर जाता है. सैंपल कैसे अंदर जाता है वो मैं दिखाऊंगा. नाउ कैविटी इज एम्प्टी, इसके अंदर कोई भी सैंपल नहीं है, एम्प्टी कैविटी. तो बेसिकली क्या है, हम जो पावर भेजते हैं फ्रॉम माइक्रो यूनिट, हमें सबसे पहले चेक करना होता है कोई भी सैंपल करने से पहले वेदर दैट पावर इज नॉट गेटिंग लॉस्ट ऑन द वे. हमारा सैंपल का इरेडिएशन कब अच्छा होगा, जब हम 100% पावर को इनसाइड कैविटी सैंपल को इरेडिएट कर पाएंगे. तो वो चेक करने के लिए हम चेक करते हैं QD. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम यू डू योर सैंपल यू नीड टू चेक योर QD. QD हमें चेक करना, और मैंने यहाँ पे बोला था कि विदाउट सैंपल हमें QD क्यों चेक करना है. नाउ आई विल टेल यू वन थिंग. फॉर डिफरेंट सैंपल, हर सैंपल का आपका G वैल्यू अलग होता है, उसका फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग होता है.
राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट होता है जब हम ट्यूनिंग करते हैं। ओके, नाउ पकड़ लीजिए आपने कोई सैंपल दिया हुआ है और वहां पे आपको क्यूडिप इंफॉर्मेशन पे दिख रहा है कि 100% पावर इज गेटिंग लॉस्ट। ऐसे हो सकता है कभी कभी 100% लॉस। तो तब आपको तो ये मालूम करना चाहिए कि वेदर दिस प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट और योर सैंपल इज बैड। वो पता करने के लिए हम विदाउट सैंपल क्यूडिप चेक करते हैं। नाउ विदाउट सैंपल अगर आपका क्यूडिप सही आ रहा है, दैट मींस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन साइड एवरीथिंग इज परफेक्ट। देयर आर सम प्रॉब्लम विथ योर सैंपल। अब सैंपल में क्या होता है, 100% पावर कब कब लॉस होता है। आपका सैंपल अगर बहुत पोलर है, सैंपल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वाटर क्या है, माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करता है। कैविटी के अंदर अगर मॉइस्चर है, अगर रूम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, बारिश के सीजन में इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्चर होगा, जो माइक्रोवेव पावर आप भेजेंगे, मॉइस्चर विल एब्जॉर्ब ऑल द माइक्रोवेव पावर। बिफोर योर सैंपल इरेडिएट्स, ऑल द मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स विल एब्जॉर्ब योर माइक्रोवेव पावर। तब आप देखेंगे आपको क्यूडिप सही नहीं मिल रहा है, मीन्स मोस्ट ऑफ द पावर इज गेटिंग लॉस्ट ऑन हिज वे। So that is why from instrumentation side, if everything is perfect or not, to check that parameter, you need to check the QDIP information without sample. This is very important. हर सैंपल का प्रॉपर्टीज अलग है, हर सैंपल का आपका पोलर प्रॉपर्टीज अलग होगा, हर सैंपल का आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग होगा। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपका अगर चेंज होगा, उसका QDIP इंफॉर्मेशन अलग आएगा। नाउ यू क्लिक ऑन QDIP। नाउ यहाँ पे क्यूडिप इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हमें यहाँ पे पावर डालना होता है। सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द जो सैंपल्स है 2 मिलीवाट 3 मिलीवाट के अंदर हो जाता है। कुछ सैंपल्स के लिए ज्यादा पावर चाहिए होता है, देन यू कैन इंक्रीज 4 मिलीवाट 5 मिलीवाट 6 मिलीवाट, बट दिस इज द रेयरेस्ट केस जब आपको 5 6 7 पे जाना पड़ता है। दिस इज द पावर ऑफ दिस माइक्रोवेव सोर्स। यस, तो यहाँ पे मे बी विल ट्राई विथ 1 milliwatt पावर। So by default it will make 0.9980. This is a program. Okay, so you don't need to be worried about this, why it is 0.9980. Now what information you are getting through this flat line is, ये flat line आपको दिखा रहा है आपका जो भी पावर आप भेज रहे हैं वो पूरा लॉस हो रहा है, 100% लॉस्ट। फ्लैट लाइन का मतलब ये है। अब ये लॉस्ट क्यों दिखा रहा है, बिकॉज अभी भी इंस्ट्रूमेंट को मालूम नहीं है विच फ्रीक्वेंसी रीजन में इसको माइक्रोवेव पावर भेजना है, तो इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी रीजन इसको देना है, राइट। यहाँ पे देखिए एक फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू आ रहा है 9154.222। सो इसका मतलब ये है अगर जो एयर है वहां पे वो इसमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये इसका नहीं है। तो आपको अगर पता है कि एम्प्टी कैविटी या एयर का फ्रीक्वेंसी रीजन क्या है, आपको अगर एग्जैक्ट मालूम है तो यू कैन एंटर इट ओवर हियर। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमें मालूम नहीं होता है, इसीलिए हम इंस्ट्रूमेंट को देते हैं कि तुम ढूंढो पूरा रीजन में कहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर रहा है और वहाँ पे उसको फिक्स करो उस फ्रीक्वेंसी में। तो वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो ट्यून। तो जब हम ऑटो ट्यून पे क्लिक करते हैं, हमने पहले पावर दे दिया, फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए हम ऑटो ट्यून पे क्लिक करते हैं। वो तब क्या करता है, इसका जो पूरा फ्रीक्वेंसी रीजन है, पूरा फ्रीक्वेंसी रीजन में वो कर्व को ढूंढता रहता है, जहाँ पे उसको मिल जाता है कि ये हमारा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, वो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सेट करेगा, तब आपका क्यूडिप इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। नाउ यू क्लिक ऑन ऑटो ट्यून। अब ये आपका दिखाएगा क्यूडिप में जब आप ऑटो ट्यून करते हो तब ये क्या करता है। यहाँ पे देखिए स्टेटस दिखा रहा है क्यूडिप, वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा एंड देयर विल बी सम प्रोसेस इट विल गो ऑन। जैसे ये मूव करेगा, इट विल रोटेट, दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग स्टिक, ठीक है। और फेज एडजस्ट होता है, ये सब कुछ इसके अंदर है। तो उतना टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रहा हूँ। देयर आर 3-4 पैरामीटर्स इट विल सेट, आफ्टर दैट इट विल सेट द फ्रीक्वेंसी। तब आपका ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा वंस योर ऑटो ट्यून इज फिनिश्ड। वो आपको दिखाएगा ऑटो ट्यून जब फिनिश हो जाएगा तब ये विंडो चला जाएगा। अब देखिए ये जब ऑटो ट्यून फिनिश हो गया तो इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गया। ये फ्लैट लाइन था, फ्लैट लाइन से ये ऐसे हो गया है। नाउ इसको क्या करते हैं, इसका फेज एडजस्टेड नहीं है,
ये एक्चुअली देखने में ऐसे होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूं हाँ क्यू डिप जो है आपका ये ऐसे विंडो दिख रहा है, राइट। क्यू डिप, परफेक्ट क्यू डिप शुड बी लाइक दिस। दोनों साइड से पैरेलल लाइन और बीच में अच्छा इस तरह। ठीक है, अब ये जो क्यू डिप है, क्यू डिप का लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, एंड क्यू डिप जितना शार्प होगा टुवर्ड्स इनसाइड उतना बेटर ट्यून्ड है। जितना बेटर ट्यून्ड होगा उसका मतलब लॉस उतना कम है। जो हम पावर भेज रहे हैं वहाँ पे वो डिटेक्टर है, वो डिटेक्टर क्या है, उस पावर को कैच करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पावर वो कैच करेगा उतना ज़्यादा आपका ये क्यू डिप इंटेंस होगा। अगर वो ज़्यादा पावर कैच नहीं कर पा रहा है, वो आपका रेफरेंस पावर के साथ उसको मैच करता है। रेफरेंस पावर क्या था आपका 1 मिलीवाट, ठीक है, तो उसको कितना मिल रहा है, तो उसको अगर 1 मिलीवाट मिलता है तो इट विल बी परफेक्टली शेप्ड। अगर 1 नहीं मिलता है, 0.7 मिलता है, 0.5 मिलता है, 0.3 मिलता है, जितना कम होता जाएगा आपका क्यू डिप का लेंथ उतना छोटा होता जाएगा। सो लेंथ ऑफ द क्यू डिप अगर आपका छोटा है इसका मतलब आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो तब आपको क्या करना है, तब आपको ये फेज एंड कपलिंग इन दोनों को एडजस्ट करना है टू गेट अ गुड क्यू डिप। क्यू डिप को आप जितना अच्छा एडजस्ट करोगे आपका सैंपल का डेटा उतना ऑप्टिमाइज्ड आएगा। नाउ क्यू डिप को एडजस्ट करने के लिए हम 3 पैरामीटर के साथ खेलते हैं। हमने पावर दे दिया, हमने ऑटो ट्यून कर दिया। बेसिकली ऑटो ट्यून क्या करता है, आपको एक रफ जगह पे लेके आके छोड़ देता है। ऐसा बात नहीं है कि वहाँ से सैंपल आपका हो नहीं सकता, जैसे वो छोड़ दिया था जहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ से आप अगर सैंपल सबमिशन करते तो आपका डेटा आता, बट वो उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज डेटा के लिए आपको इसके साथ थोड़ा सा मैनुअली इसको फाइन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फाइन एडजस्ट के लिए हम 3 चीज़ों के साथ खेलते हैं। एक हो गया कपलिंग, नंबर 1, नंबर 2 इज फेज, एंड नंबर 3 इज सेंटरिंग। सेंटरिंग मतलब इसको लेफ्ट एंड राइट पे लेके जाने के लिए। तो सबसे पहले हमें अगर कपलिंग चेंज करना है, कपलिंग के साथ, कपलिंग पैरामीटर के साथ प्ले करना है, वी टर्न ऑफ द रेफरेंस। ऑफ कीजिए। ऑफ करने के बाद आपको क्या देखना है, तब आप बाकी यूनिफॉर्मिटी बाकी सब कुछ भूल जाइए। आपको देखना है ये जो पॉइंट है इसको सबसे ज्यादा इंक्रीज करना है, राइट, और वो हम करेंगे इसको बहुत स्लोली। दिस इज वेरी मच सेंसिटिव, तो इस आप इससे भी कर सकते हो। तो आपको ये देखना है वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसको सबसे ऑप्टिमाइज्ड पोजीशन में लेके जाके छोड़ना है। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक करके रखिए एंड ड्रैग इसको, कर्सर को। बहुत स्लो आता है, ये देखिए छोटा हो गया। ये थोड़ा बाद रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि इसको जब आप करते हो ये इंस्ट्रक्शन देता है यहाँ पे इसके अंदर मोटर को। ये देखिए वो जो आप कर रहे हो ना, ये इसको घुमा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मोटर घूमता है तब जाके वो एडजस्ट होता है। और ये बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक स्लीट होता है, वो बेसिकली स्लीट का जो पोजीशन है उस स्लीट पोजीशन को एडजस्ट करता है। तो आपको अभी पता चलेगा कि दिस इज मैक्सिमम, आपने मुझसे बेहतर किया हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब आपका कपलिंग, ये जो पोजीशन है कपलिंग और ये जो वैल्यू है 415, दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू फॉर कपलिंग फॉर एम्प्टी कैविटी। नाउ आपका कपलिंग का काम हो चुका है। नाउ आप रेफरेंस को ऑफ कर दीजिए, मतलब ऑन कर दीजिए। आपने ऑन कर दिया तो आप देखिए ये पहले से थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो चुका है। नाउ इसको हमें सेंटर पे लेके आना है। इस क्यू डिप को अगर इस तरफ लेके आना है, हम इस सेंटरिंग को इसको क्लिक करते हैं। अगर इस तरफ लेके जाना है, वी क्लिक ऑन दिस। सो बेसिकली हम विंडो को शिफ्ट करते हैं। आप देखिए, क्लिक करके देखिए, वो देखिए आ गया, राइट। आपने 2 काम कर चुका है। 1 इज कपलिंग यू हैव डन, सेंटरिंग यू हैव डन। नाउ अभी आपका फेजिंग का काम है। बट फेजिंग का क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला लाइन को आपको नहीं देखना है, यहाँ से आपको ये देखना है। आप अगर ये देख रहे हो, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे जो बेसिकली मिड लाइन से इसका जो एरिया है, दिस इज मोर देन दिस। तो ये दोनों एरिया को आपको सेम करना है बाय एडजस्टिंग द फेज।
तो फेस भी सेम ऐसे एडजस्ट होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये कितना सेंसिटिव है। ये देखिए दूसरी तरफ हिल गया, इसका मतलब हम इस तरफ चलेंगे। ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। अब देखिए ये आ जाएगा, ये थोड़ा सा हिल चुका है, फेस मेरा ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। इसको अगर मैं सेंटरिंग करूंगा, ये देखिए एरिया ऑलमोस्ट ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ 99% ऑप्टिमाइज्ड QDIP। नाउ अभी आपका QDIP क्या है, एडजस्टेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपने जो पावर भेजा हुआ है वो ऑलमोस्ट पूरा पावर आपका मिल रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी इज क्लोज टू 100%। नाउ हम इसको क्लोज करेंगे। हाँ क्लोज, ओनली QDIP विंडो क्लोज होगा। ठीक है, अभी आपका इंस्ट्रूमेंट सैंपल देने के लिए तैयार है और आप सैंपल चेक कर सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, आपने जो चेक करा है वो एम्प्टी कैविटी में चेक करा है। नाउ जब भी आपका कोई सैंपल आएगा तो क्या है, अंदर आपका वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा और उसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली फॉर दैट सैंपल यू नीड टू चेक QDIP आल्सो, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी डू इट। और एक चीज आप मेंटेन करिएगा तो अच्छा रहेगा, बिफोर पुटिंग सैंपल पावर को 0 कर दीजिए। बेसिकली क्या होता है, माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बट 1 milliwatt पावर इज वेरी लेस। मैंगनीज मार्कर, ML मार्कर, ओके। This is the amount of sample you need. No, this much sample is there, but इतना सैंपल आपको चाहिए नहीं है। आपको अगर इतना भी सैंपल है, इसका अगर 1/10 भी है तो भी हो सकता है सैंपल। बट प्लेसिंग ऑफ सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैंपल को कहाँ पे रखना है, सैंपल हाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इनसाइड योर कैविटी, क्योंकि कैविटी के जहाँ पे आपका रिस्पॉन्स पॉइंट होता है एंड सेंटर फील्ड होता है, सैंपल को आपको बिल्कुल वहाँ पे प्लेस करना होता है। नाउ more volume of your sample, it is easier to put on that particular point, जितना ज़्यादा आपका सैंपल होगा। बट कभी कभी ऐसे भी होता है आपका सैंपल वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो तब आपको वो मेजरमेंट थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा, देन विल गेट। तो सैंपल अलग से ये बनाना है या फिर इसमें डायरेक्ट? नहीं, ये हो गया आपका ये सब टीम, ठीक है। आपको इसके अंदर सैंपल, पाउडर सैंपल जो भी है अंदर डालना है डायरेक्ट। इसको हमने इसलिए डाला हुआ है, अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है, इसलिए डाला हुआ है क्योंकि हमारे पास सैंपल कम था। तो सैंपल हाइट को इंक्रीज करने के लिए हमने एक छोटा सा कैपिलरी ट्यूब डाला हुआ है। आपके पास अगर जैसे कॉपर सॉल्ट सस्ता वाला ऐसे सैंपल अगर है तो आप तो कितना भी डाल सकते हो, बट कुछ होता है कि सैंपल कंपाउंड आपके पास बहुत ही कम होता है। देन यूज कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के अंदर देखिए उसको ऊपर टेफलन से सील करना है, टेफलन, राइट। देन पुट इट इनसाइड। उसमें क्या होता है, आपका सैंपल का हाइट इंक्रीज हो जाता है। दिस विल बी आउटसाइड, सो दिस इज क्वार्ट्ज। तो आपको क्वार्ट्ज ट्यूब यूज करना है, अदरवाइज आपका वो QDIP का इंफॉर्मेशन लॉस होगा। नाउ ये जो है ये है आपका सैंपल होल्डर, ठीक है। अब सैंपल होल्डर कैसे हमें प्लेस करना है वो है दिस वन। सबसे पहले हम इसको इसके अंदर डालेंगे, ओके। नाउ इसको इसके अंदर प्लेस करेंगे। तो इसको अगर हम प्रेस करते हैं टाइट हो जाता है तो ये लॉक हो जाता है काइंड ऑफ। तब आप इसकी हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। इसके हाइट को अगर चेंज करना है इसको थोड़ा ऊपर करके देन यू कैन पुट इनसाइड, यू कैन टेक इट आउट। अब हाइट एडजस्ट जब करना है, ये हमारा है स्केल। ये स्केल में यहाँ पे लिखा हुआ है RT मतलब रूम टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा है VT मतलब वेरिएबल टेम्परेचर। तो वेरिएबल टेम्परेचर के लिए सैंपल हाइट अलग होगा, ट्यूब का हाइट अलग होगा, रूम टेम्परेचर के लिए आपका हाइट अलग होगा। तो हम कैसे इसको मेजर करते हैं, ये जो कट मार्क है हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ठीक है। आपको ऐसे मेजर करना है। ये जब आप मेजर करते हो, आप पकड़ लीजिए आपका टोटल सैंपल हाइट है यहाँ पे, ये व्हाइट तक है, राइट। तो आपका जो सैंपल होगा, टोटल सैंपल हाइट का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन से मैच करना चाहिए। सो ये मिड पॉइंट का मतलब ये है, ये आपका वहां पे जाके वो बिल्कुल वही सेंटर फील्ड वाला पॉइंट पे जाके वहां पे मैच करेगा। सो दिस इज योर एक्चुअल हाइट। नाउ इन केस सपोज योर सैंपल हाइट इज वेरी लेस, तो इसको आपको इस हाइट के साथ मैच करना है। और हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो हाइट है, जो भी सैंपल हाइट हमारा है, आधा नीचे आधा ऊपर रखने की हम कोशिश करेंगे। तो इसको फिर अंदर देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इरेडिएशन होगा इसको हम क्लीन करेंगे, लेंथ फ्री, ठीक है।
हाँ हाँ। तो जब हमने इसको क्लीन कर लिया तब मैं यहाँ पे टच नहीं करूँगा, मैं ऊपर टच करूँगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये लूज होता है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये टाइट करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल पोजीशन है, ये थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज पे ऐसे लूज रहता है। नाउ विल इंसर्ट दिस हियर, ये बैठ गया। ये जब बैठ गया, नाउ दिस इज लूज, ठीक है। तो इसको होल्ड करने के लिए इसको हम I'll show you, मैं एक बार कर देता हूँ। जब ये टाइट हो गया तब देखिए ये नहीं हिल रहा है और ऐसे खींचने से भी बाहर नहीं आएगा। तो ये जब पोजीशन हम सेट करते हैं तब वो बिल्कुल वो सेंटर फील्ड वाला जो पॉइंट है हमारा कैविटी का, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। ऑल्सो इफ यू वांट टू सी द पोजीशन ऑफ दिस, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। नाउ व्हाट यू विल डू द सेम प्रोसेस जो आपने एम्प्टी कैविटी में किया हुआ था, वो हम चेक करेंगे। नाउ यू गिव पावर 1 मिलीवाट के लिए। हाँ हाँ, मोस्ट ऑफ द सैंपल आपका 1 मिलीवाट 2 मिलीवाट पे हो जाएगा। ओके, नाउ यू ओपन द क्यू टिप। ओके, नाउ क्यू टिप फ्लैट है। फर्स्ट अपने ऑटो ट्यून करना है, उसके बाद आप करेंगे फाइन एडजस्ट। कपलिंग खत्म होने के बाद वो फेज को एडजस्ट करेगा। आप देखिएगा वहां पे दिखाएगा फेज। अभी फेज स्टार्ट हो। नाउ हमें रेफरेंस ऑफ करना है। प्रोसेस इज सेम, ठीक है। नाउ यू नीड टू ट्राई टू इंक्रीज दिस। नाउ रेफरेंस ऑफ ऑन हो गया। नाउ आपको फेज एडजस्ट करना है। फुल शेप बिगड़ रही है इसकी। नहीं, वो हो जाएगा। देखिए लेफ्ट की तरफ चलिए, स्लोली स्लोली गो स्लोली, बस ये पॉइंट है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लेके जाना है बाय सेंटरिंग। सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑप्टिमाइज्ड। सी, दिस इज वेरी गुड। ये भी सेम बिल्कुल सेम है। दिस इज ऑप्टिमाइज्ड। नाउ यहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन देखिए, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 9438। इसका मतलब ये है आपका अंदर जो सैंपल गया हुआ है उसका वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वही है, और इसके हिसाब से ही आपका जी वैल्यू आता है, ठीक है। तो उसने वो ऑटोमेटिकली थ्रू ऑटो ट्यून एडजस्ट करा था। कपलिंग एंड फेज को वो रफ एडजस्ट करके आपको छोड़ दिया। तो बेसिकली आपको कपलिंग और फेज को फाइन एडजस्ट करना है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एडजस्ट। नाउ यू कैन क्लोज। ओके, अभी आपका क्यू टिप सही जा रहा है, सैंपल के हिसाब से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे है, अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑलमोस्ट सेट कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट सबमिट करना है। अब एक्सपेरिमेंट सबमिट करने के लिए क्या है, तब आपका एक्सपेरिमेंट का जो पैरामीटर है यहाँ पे है। ये हो गया सेंटर फील्ड। स्वीप, स्वीप मतलब ये जो विंडो है मिनिमम टू मैक्सिमम, वो हो गया आपका स्वीप। रेंज, दिस इज बाय डिफॉल्ट 336, so according to your sample you need to change these, but ये मेरे ख्याल से हमारा 336 के आसपास आ जाएगा। I'll show you how to adjust that। 1/100 मतलब हो गया 100। तो 100 का मतलब ये है योर सेंटर फील्ड वैल्यू इज मिडिल पॉइंट, इट विल बी +100 एंड -100। पकड़ लीजिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है पकड़ लीजिए 550 पे, और ये जो वैल्यू है पकड़ लीजिए मे बी 110। तो तब आपको ऐसे एक सेंटर फील्ड चूज करना है और प्लस माइनस स्वीप विड्थ ऐसे देना है ताकि ये पूरा टोटल ये जो 110 एंड 550 दोनों को सेम विंडो पे लेके आ सके। नाउ ये दोनों करने के बाद आता है टाइम। टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे 30 सेकेंड। दिस यू कैन चेंज। टाइम मतलब द मैग्नेट विल स्टार्ट स्वीपिंग फ्रॉम 240 to 540 in 30 second time. The total time it will take is 30 second. Now point is 30 second में भी आपको डेटा मिलेगा, but हम बोलते हैं कि 1 मिनट का अगर देंगे तो आपको बेटर मिलता है क्योंकि the sweeping will be slow. We have a new sample, we don't know. Then we will try, we will check, we will do trial and error. लंबा एक्सपेरिमेंट देने के जगह बेटर यही है, हम नंबर ऑफ स्कैन्स को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्कैन होगा।
टोटल स्वीप सीक्वेंशियल सेटिंग्स है। इसको हम बाद में दिखाएंगे कि नंबर ऑफ स्कैन हम कैसे कर सकते हैं। मतलब ये स्वीप पकड़ लीजिए 5 दिया है आपने, तो नंबर ऑफ स्कैन विल बी 5। फिर उसका जो एवरेज डेटा है वो फिर आपको वो एवरेज डेटा देगा, राइट। सो 30 सेकेंड हो गया। नाउ देयर आर 2 थिंग्स, वन इज मॉड विड्थ, सेकंड वन इज एम्पलीट्यूड। ये दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड क्या है? वो आपका जो भी डेटा आपके पास आ रहा है उसको एम्पलीफिकेशन करता है एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर के साथ, और आपका डेटा को आप इंक्रीज करके, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके, नॉट सेंसिटिविटी विल नॉट इंक्रीज एग्जैक्टली, आपका क्या है उसका जो इंटेंसिटी है उसको उसको इंक्रीज करके आपको देगा। बट एम्पलीट्यूड में एक प्रॉब्लम है, क्या है, आपके डिटेक्टर के पास जो डेटा आ रहा है वो आपका स्पेक्ट्रा को भी इंक्रीज करेगा, नॉइज को भी इंक्रीज करेगा। So that is why it is recommended we first play with the mod width. अब mod width कितना देना है वो मुझे भी नहीं मालूम, वो हम सैंपल का रेस्पॉन्स के हिसाब से देंगे ताकि वो हमारे इस विंडो में फिट इन हो, ठीक है। उसके बाद हम एम्पलीट्यूड के लिए देखेंगे कि हमें कितना इंक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है। अभी हम एक रफ हिसाब से चलेंगे। सो मे बी हम यहीं से ट्राई कर सकते हैं। mod width 0.1, मे बी आई मेक इट 0.1 into 1 and amplitude maybe I'll make it 10. You can understand, no, this is into, this is multiplication factor, 1 into 0.1 and this is 1 into 10. Can you see? We can change all this. So basically here 1 into 10 means amplitude is 10. This is 1 into 0.1 means 0.1 millitesla mod width, right? Now ये आपका आपने एक पैरामीटर आपने ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या डेटा आता है। आपका पैरामीटर ऑलरेडी सेट हो चुका है। नाउ क्या है, अब देखिए यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये येलो डॉट एक आ रहा है, ये येलो डॉट मिडिल पे है, सेंटर फील्ड पे है। नाउ आपको जो स्वीप करना है मैग्नेट को, स्वीप स्टार्ट करना है 240 से 540 तक, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट एज पे हम क्लिक करेंगे, तब क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। हमने लेफ्ट एज पे क्लिक किया, अब देखिए ये लेफ्ट पे आ जाएगा, देखिए आ गया। ये कर्सर यहाँ पे, मतलब मैग्नेट कर्सर जहाँ पे है मैग्नेट वहीं से स्टार्ट करेगा। तो पैरामीटर सेट करने के बाद हमें लेफ्ट एज पे क्लिक करना है ताकि वो बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाए। ये लेफ्ट पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक येलो डॉट बन गया विच इज ब्लिंकिंग। जब आपने स्टार्ट पे क्लिक करा है तो ये है मैग्नेट जो स्वीप हो रहा है, वो वही दिखा रहा है। तो मैग्नेट जब स्वीप हो रहा है 240 मिली टेस्ला से स्लोली वो इंक्रीज हो रहा था। जब आपका 335 के आसपास आया तब आपको वहां पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिला, वो एक्साइटेड स्टेट पे गया। देन अगेन जब बेस स्टेट पे आ रहा था वो आपको रेडिएशन डेटा दिया, वो आपको यहाँ पे एज अ स्पेक्ट्रा मिला। और यहाँ से यहाँ तक आपको कोई स्पेक्ट्रा नहीं मिला, मतलब आपका जो सैंपल है उसका यहाँ पे कोई स्पेक्ट्रा है ही नहीं इस विंडो पे। इसका मतलब आपको इतना लंबा देने की जरूरत नहीं है, राइट। और यहाँ पे देखिए टोटल 6 लाइंस है। तो हमें कोशिश यही करना है, जो भी हमारा स्पेक्ट्रा है उसको मिड पॉइंट पे हमें सेंटर फील्ड सेट करना चाहिए। नाउ इसका सेंटर फील्ड कहीं यहाँ होगा, इस मिडिल पे होगा, राइट। नाउ वो फिनिश हो चुका है, देन ग्रीन हो गया, मतलब एक्सपेरिमेंट फिनिश हो चुका है। तो इसको हमें सेंटर फील्ड यहाँ पे देखिए वो बाय डिफॉल्ट 390 हो गया था, ठीक है। तो सेंटर फील्ड हमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कर्सर है इसको हम मिडिल पे लेके आएंगे, क्लिक और ड्रैग करके हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। ये जब ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया तब देखिए मैग्नेटिक फील्ड 390 से चेंज होकर 335.35 हो गया। इसका मतलब ये है, ये जो सैंपल आपने दिया हुआ था इस सैंपल का सेंटर फील्ड यहाँ पे है। नाउ एडजस्ट करने के बाद आप देखिए ये जो है हमने स्वीप बहुत ज्यादा दिया हुआ था, तो हम स्वीप विड्थ को भी एडजस्ट करेंगे, देन विल स्कैन अगेन। ये बहुत लंबा है, इतना ज्यादा हमें नहीं चाहिए,
आप यहाँ से पता लगा सकते हैं दिस इज 335, दिस विल बी मे बी 300, दिस विल बी मे बी 370 और 80. सो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं. क्लिक टू लेफ्ट एज, वो लेफ्ट पे आ गया, देन स्टार्ट. ठीक है. और एक चीज है, इसके ऊपर वो आएगा, ये फिर डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. अगर आपको इसको डिलीट करना है, यू कैन क्लिक ऑन क्लियर वेव फ्रॉम. इस पे अगर क्लिक करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा विंडो. देन वी क्लिक ऑन स्टार्ट. सो अगेन इट विल स्टार्ट. अभी देखिए डेटा में चेंजेस आया. मैंने जब स्वीप चेंज किया है, स्वीप चेंज करने के बाद देखिए डेटा चेंज हो चुका है थोड़ा सा. इसका मतलब ये है किसी सैंपल में आपका अगर मॉड विड्थ, स्वीप विड्थ ये प्रॉपर नहीं होगा तो आपका डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज होगा. तो इसीलिए आपका पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल पिक्स आते हैं सर इसमें 6 आता है. चेंज आप इस वे में कह रहे हैं, हाइट वे में तो भी 6 अभी भी है, पैटर्न 6 अभी भी है, बट ये देखिए पहले ये पैटर्न आपका क्लियर नहीं था. अच्छा. काफी पिक्स आते हैं. बट यहाँ पे भी देखिए और एक प्रॉब्लम है, आपका जो पिक है वो विंडो से बाहर जा चुका है. तो इसका मतलब है हमें इसको विंडो के अंदर लेकर आना चाहिए. तो यहाँ से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं. मे बी एम्पलीट्यूड हम 5 और 6 5 पे चेक करेंगे. ठीक है. देन स्टार्ट. क्लियर नहीं है. इट्स ओके. ये देखिए पीछे वाला चार्ट हट जाएगा. ये यहाँ पे 2 तरीका है. एक है ऑटो सेव, एक है नॉर्मल फाइल से. This sweep is fast यस. सो वी and नीड constant is लेस. slow. यस. It is fast. टाइम. Fast is fast. Slow is slow. Yeah. So maybe for 0.003 we can make it 1 30 秒. 1 minute. Try. Okay. Try. For Yeah. this time. 0.01. This. This will symmetry. Yeah. This sweep width is Very It very is small slow. thing. Okay. now is Yes. changes. Change. Very big. Not correct. This. So decrease the amplitude or mod. And this ESR is pointer is more pointer. The more data points. Now get C. Mm-hmm. No? This. Yes. This data is Okay. You are decreasing. Okay. पहले ये जो टाइम कांस्टेंट था 0.03 पे, राइट. तो मैंने वो बताया कि नॉर्मली हम 0.03 पे हम 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट देते हैं. तो बेसिकली आपका ये जो टाइम है, टोटल टाइम ऑफ स्वीप और ये टाइम कांस्टेंट दोनों ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. वो अगर सेम नहीं होगा तो आपका ये शिफ्टिंग आएगा, ऊपर लंबा नीचे छोटा ऐसे आएगा. तो इन दोनों को यूनिफॉर्म करने के लिए आपको टाइम कांस्टेंट और ये टाइम के साथ प्ले करना है. तो नॉर्मली हम जो रेकमेंड करते हैं, आपका अगर टाइम कांस्टेंट 0.03 है तो इसको 1 मिनट. बट फॉर फर्स्ट टाइम स्कैनिंग आई मेड इट 30 सेकेंड. तो इनकेस अगर 30 सेकेंड पे आपको अगर करना है देन आपको टाइम कांस्टेंट को डिक्रीज करना है. डेटा प्रोसेसिंग विल कम लेटर. डेटा प्रोसेसिंग, इसी को अगर डेटा प्रोसेस करना है वी क्लिक डायरेक्टली ऑन डेटा प्रोसेसिंग. तो ये आपका यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग विंडो पे आ चुका है. सो डेटा प्रोसेसिंग विंडो आपका ऑफलाइन मोड पे भी आपका चलेगा. मतलब मैंने वो बताया था ना, इंस्ट्रूमेंट आपका अगर ऑफ है तो आप डेटा प्रोसेसिंग विंडो से डेटा प्रोसेस कर सकते हो. जो भी आपको चेक करना है, प्रिंट आउट लेना है, जो भी लेना है, सो यू कैन डू दैट.
अब डेटा प्रोसेसिंग विंडो में आपको बहुत सारा पैरामीटर्स है जिसके साथ हम इसको खेल सकते हैं। ये देखिए, जूम करने के लिए अगर हमने देखना है इंफॉर्मेशन में क्या है, इसको छोटा करना है, यहां से सिंबल से आपको बेसिकली मालूम पड़ जाएगा। वाइड एक्स एक्सिस रेंज, मतलब ये रेंज इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये छोटा हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो डेटा प्रोसेसिंग में हम बाद में आएंगे, पहले हम सैंपल चला लेते हैं, एक्सेसरीज देख लेते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का हमारा जो भी है बिल्कुल हम लास्ट पे रखेंगे, कैसे डेटा प्रोसेस करना है, क्योंकि डेटा प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल, राइट। तो डेटा है, डेटा को प्रोसेस करके क्या क्या पैरामीटर चेंज करना है, कैसे आप देख सकते हैं, वो हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे। वंस आवर ऑल द एक्सेसरीज आर डन, तब तक आपका डेटा आप सेव करते रहिए, राइट। ओके, नाउ आपका जब एक्सपेरिमेंट आपका खत्म हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर को 0 करेंगे। remove the sample. हाँ,